Excuse me, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the third lecture of Calculus 1 for the Computer Engineering 1 batch of Dr. A.Q. Khan Institute for Computer Sciences and Information Technology. So the topic which we will be covering today is of numbers and solving the equation by completing the equation and also by the quadratic equation. And also we will going to see the inequalities, that how do inequalities look like and what are the complications in the माइक ऑन को प्लीज कहिए कि माइक बंद कर दे अपने we will going to see the inequalities after that. So let's begin for today's lecture. So last lecture में हमने देखा था कि आपके पास numbers क्या होते हैं. We have looked at in the last lecture we looked at real numbers. Real number ऐसा number है जिसके अंदर सारे numbers included होते हैं. And also we looked at number line, which is a simple line and we have an origin point. जिसको 0 point भी कहते हैं. Remember this thing, 0 is neither a positive nor a negative number. And then we looked at how can you plot a number on a coordination line. So let's begin for today's lecture. So when you look at the properties of a number, the very first property, if you see for the inequality part, is if A is greater than B and B is greater than C, then this means that A is greater than C. So very simple phenomena. अगर A की वैल्यू B से ग्रेटर है और B की वैल्यू C से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास A जो है उसकी वैल्यू C से भी ग्रेटर आ रही है इस केस के अंदर. So this is the very first property. Similarly, if we have a number A is greater than B, then A plus C is greater than B plus C. अगर हमारे पास दो numbers हैं which are A and C and they are greater than B plus C, so इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके opposite numbers को add कर दूं, this A and C is added. So अगर हम इससे पिछली वाली इक्वेशन को देखें तो हमें वहां से पता लगता है जो A है इस केस में, this is the smallest number because why? Because ये B से small है और B C से small है, तो इसमें सबसे smallest number आपके पास कौन सा आ रहा है? वो A आ रहा है. So let me ask a question. मैं जिससे पूछूं वो मुझे आंसर करे. सुमैया बशीर. सुमैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है. ओके, ये मुझे बताएं कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ए, बी और सी में व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर? ए. ए किस तरह ग्रेटेस्ट है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा वाला है? किस तरह? साथ रीजन भी बताएं. हाउ डिड यू फाउंड आउट कि ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर? ए इज ग्रेटर देन बी. यस. सो एंड बी इज ग्रेटर देन सी. ठीक है. सो हमारे पास इस केस में क्या है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ए है. वाई? बिकॉज ए, इसमें तीन नंबर्स हैं आपके पास. जी. ए बी से ग्रेटर है और बी सी से ग्रेटर है. सी, तीन नंबर्स हैं. Yes, exactly. Since this B is greater than C and this A is greater than B, so इसमें सबसे greatest number कौन सा आपके पास? A वाला आ रहा है, right? So I hope that this is clear to everyone. या आप लोगों ने NTS वगैरह के टेस्ट में भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है. Right. So let's solve this inequality afterwards. So इससे पहले हम एक ना छोटी सी इक्वेशन देखते हैं ताकि you have an idea कि हम
अलजेब्रिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी अ सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बिफोर वी प्रोसीड अहेड. अच्छा, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो ना तो प्लीज या तो हैंड रेज करें चैट में, नहीं तो मेरे से डायरेक्ट वॉइस पे पूछ लें अगर मेरा वो इफ आई एम नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द कंप्यूटर. बट लेट्स सी द वेरी फर्स्ट इक्वेशन. बहुत छोटी सी इक्वेशन देखते हैं. x plus 2 is equivalent to 3. ओके, एक मिनट इसको नीचे लेंगे, पर लाइट ठीक नहीं है. x plus 2 is equivalent to 3. So we already know this. जब भी हम इक्वेशन की एक साइड की वैल्यू कोई एक वेरिएबल को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसमें साइन चेंज हो जाता है. चेंज होता है. So x is equivalent to 3 minus 2. So this becomes x is equal to minus. So x is equal to 1. So it's a very easy equation. So इसको थोड़ा सा जरा ट्रिवियल करते हैं. 3x plus 6 is equivalent to 6x. इसको सॉल्व करते हैं. Second example. So when I am solving this, this becomes, ये जो 3x है मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ. So this becomes 6 is equal to 6x minus 3x. So this becomes 3x. 6 is equal to 3x. Because x की टर्म थी, x की टर्म x में से subtract होगी. So you are left with the x term. सॉल्विंग दिस फर्दर, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अब क्या होगा, अगर एक नंबर किसी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा. x is equal to 6 divided by 3. So this becomes equal to, so x is equal to 2. right. So this equation had another variable involved into it, right. So let's go a step ahead of this thing. Acha, by the way, I am solving certain examples for you, but in an exam prospect, this is just a concept. Remember this thing. कोशिश करें चीज़ों के concept लें, because इसी concept के ऊपर कोई भी equation आ जाए, कोई भी variable आ जाए, you can solve this up. All right. So let's solve another equation. So now we have little difficult. अब ये G part है, this is C part. So we have equation x cube plus 3x square minus 10x equal to 0. एक मिनट, मुझे एक लाइट ऑफ कर रहे थे जी. ठीक है, ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया? नो सर, अब क्लियर है. ओके. सो वी हैव दिस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x इक्वलेंट टू 0. सो व्हाट इक्वेशन याद रखें, अभी तक आप ना मैथ्स पढ़ रहे हैं. so far you have looked mathematics in your FSC और A levels. लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको ना इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पता हो. सो याद रखें, हमेशा एक अच्छा इंजीनियर वो है जो मैथ्स को फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सके, राइट. सो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स के वेरिएबल्स है और मैंने चाह ये रहा हूँ कि मैं उस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन का पॉइंट ये कि कहाँ पे जाके मैं उसको अपने सिस्टम को सेटिस्फाई करता हूँ. मे बी दिस इज आ इक्वेशन जहाँ पे एक टायर चल रहा है और मैं चाहता ये हूँ कि उस टायर के 0 पॉइंट के ऊपर आके मैं बता सकूँ कि कहाँ पे आके जो है ना टायर के मैंने नट खोलने, मे बी, राइट. बट कोशिश करें, सो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को आफ्टर सर्टेन लेक्चर्स मैं इसको कोरिलेट करूँ. सो लेट्स गो अहेड. अच्छा, सो जब मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूँ ना तो दिस इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x.
तो सबसे पहले इक्वेशन में हम देखते हैं कि इसको थोड़ा आसान बनाएं। सो मैं इसमें से देखता हूँ कि एक वेरिएबल सब में आ रहा है which is the x वेरिएबल। सो आई एम टेकिंग x कॉमन, सर इसमें x से डिवाइड करवा लेंगे ना। so I'll going to take the x common from over here, x square plus 3x minus 10 equal to 0. So if x is over here, we have one solution. x की वैल्यू अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, so one of the solution for x is equivalent to 0. पहला solution तो ये निकाल लिया। अब अगली इक्वेशन को देखते हैं। So now we have left this equation which is x square plus 3x minus 10 equivalent to 0. So there are two methods of solving a algebraic second order equation. One is by completing the square, और जो इसका दूसरा तरीका का है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर फैक्टराइजेशन मेथड भी तो है। सर बाय फैक्टर भी तो कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी। जो फैक्टराइजेशन टाइप है, बेसिकली ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, ये भी फैक्टराइजेशन की टाइप है। यस, फैक्टराइजेशन इज अनदर टाइप। लेट मी राइट दिस आउट, फैक्टराइजेशन। सो आप इन्हीं तीनों तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक सिंपलेस्ट तरीका कार है, इसके अलावा हमारे पास और मेथड्स भी हैं, बट एट अ ग्रॉस रूट लेवल ये इन चीज़ों को याद रखें। सो हम आज के लेक्चर में ये देख रहे होंगे फैक्टराइजेशन किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो भी ये वाला वेरिएबल दिया हुआ है साथ एक्स स्क्वायर का, विच इज द ए वेरिएबल, इसको सी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा। So I will going to multiply this a with c. I will going to get a resultant x square multiply with minus 10 and I have minus 10 x square. अच्छा, अब ये जो x square है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग ब्रेक डाउन कर देंगे। ये जो अलग अलग ब्रेक डाउन करना है, this one is called as factorization. So let's do this. How I do it? By taking the LCM of it. Minus 10. So इस minus 10 को फिलहाल मैं माइनस साइन को उड़ा देता हूँ, and I have this 10 divided by 2, I have 5. So इससे छोटे लेवल पे ये नहीं जा सकता. So we cannot further divide the 5, so I'm going to stop over here. So I have 2 and 5 as its solution. So अगर 2 को 5 से multiply कर दे तो we have value equivalent to 10. अब हम इस चीज को सिस्टम में implement करते हैं। So हमने क्या करना है कि कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि हमारे पास जो सेंटर वेरिएबल है ये 3x ही बना करें, और हम इस चीज को फॉर्म करेंगे इन दो वेरिएबल से, which are 2 and 5. So I will going to factorize this and I will write down x square minus, सर इसको मिडिल टर्म फैक्टर कहते हैं ना, plus 5x minus 10x equivalent to 0. So when I am putting this value over here, let's do the math over here. Plus 5 minus 2x will going to give me value equivalent to 3x. So आपने ऐसा ऑपरेशन करना है कि इन दो नंबर्स के साथ इनके साइन चेंज करें कि आपको रिजल्टेंट नंबर, यहाँ पे जो भी सेंटर में नंबर है ये मिलना चाहिए, राइट? So let's solve this further ahead. So after this I can now take a common from it. So x की वैल्यू यहाँ से commonly I have x minus 2 plus यहाँ से 5 common लिया, I have x
minus 2 equivalent to 0. So solving this a step ahead, ये जो x plus 5 है मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को आपस में कॉमन ले लेता हूँ. So I have x plus 5 multiply with x minus 2 equivalent to 0. यहां तक किसी का कोई सवाल हो? No, sir. Okay, let me go ahead then. So what we do, we have to find out the solution. यहाँ से आगे things are pretty simple. So taking this x plus 5 equivalent to 0, एक दफा इसको ट्रीट कर लेते हैं. So इससे मेरे पास x का क्या आंसर आ गया? -5. और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास x -2. x -2 equivalent to 0. So I have x equivalent to 2. So I have found out 3 answers to this equation, या ये 3 solutions पे अपने आप को satisfy करती है. इनमें से 2 solution इसमें से कोई भी डाल के देखते हैं. सबसे पहले हम let's plug in the value of 0 into this equation. So 0 is pretty simple case. So let's do this 0 case first. So x cube plus 3x square minus 10x equivalent to 0. इस 0 को जहाँ जहाँ x लिखे उसके साथ रिप्लेस कर दें. 0 cube plus 3 into 0x square minus 10 into 0 equivalent to 0. So इसको सॉल्व करूंगा. 0 क्यूब है, I have 0, 3 multiply with 0, again 0, minus 10, 0. So I have answer equivalent to 0. So 0 वाला solution satisfied whole of this equation, right? So सबसे पहले हमने इसमें क्या ट्राई किया था? x is equivalent to 0. Now we will going to try another solution which is x is equivalent to 2. अब 2 को ट्राई करते हैं, क्या इससे भी आंसर ठीक आ रहा है, क्या ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं. Okay, let's try this. So I have x cube plus 3x square minus 10x equivalent to 0, and I am solving this for x equal to 2. So 2 cube plus 3 into 2 square minus 10 into 2 equivalent to 0. 2 का क्यूब होता है 8. 8 plus 3 multiply with 4, because 2 multiply with 2 is equal to 4. 4 3s are 12, minus 10 2s are 20, equal to 0. So 8 plus 12 is 20, minus 20 equal to 0. ठीक है जी. So हमने, हमारे पास एक इक्वेशन थी, दिस वाज एन अलजेब्रिक इक्वेशन. हमने इसमें से कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद हमने इसके 3 सॉल्यूशंस थे वो हमने फाइंड आउट किया. बाय द वे यू आल्सो नो जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है वो आपको पता लगता है इस x की पावर से किसके कितने सॉल्यूशन आ रहे होंगे. जितनी जितनी इस x की पावर इंक्रीज करती है उतने उतने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द minimum number of solution which will going to exist. A equation can be solved for more than one answers. So लेकिन कम से कम क्यूब रूट वाली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है जी. यहाँ तक फैक्टराइजेशन में किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो तो प्लीज स्टॉप मी ओवर हियर. No, sir. Alright, let's go ahead. अच्छा जी, अब इसमें से हम सॉल्व करते हैं. हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व कर ली थी. जो उसमें सर x इक्वल टू 5 हम यहाँ पे कर सकते हैं ना. हाँ. अच्छा, जैसे हमने ऐड किया मैंने 5 रह गया. एक चीज नहीं की, x is equal to -5. You can also do the maths. आपके पास सेम x is equal to -5 के लिए भी सेम इसका आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए.
ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा जी, इसको आगे अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को, कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन क्या चीज़ है। Let me just mitigate this part over here. चलो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए नई क्वेश्चन करते हैं। So we will now going to solve an equation for a quadratic type of equation. So for a quadratic equation, I have equation 2x square plus 5x minus 6 equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास ये जो आपने इक्वेशन सॉल्व की थी ना, इस इक्वेशन को हमने एनालिटिकली सॉल्व किया था, ठीक है। जो सारी चीज मैंने प्रोसेस किया इसको हम कहते हैं कि इसका एनालिटिकल प्रोसेस है। बट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी सॉल्व इट यूजिंग अ फॉर्मूला व्हिच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b square minus 4ac divided by 2a. So this is the quadratic equation. सेम उसी तरह हम वेरिएबल्स को इसमें नाम देते हैं। x स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल होता है ये आपके पास है a, और x के साथ जो वेरिएबल है वो b है, और जिसके साथ कुछ भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हुआ या कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो इस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं ये आपका कांस्टेंट नंबर है। सो लेट्स सॉल्व दिस। a is equivalent to 2, b is equal to 5 and c is equal to minus 6. So solving this further, so this becomes minus b, which is b की वैल्यू है 5 minus 5 plus minus under root b square, which is 5 square, minus 4a is equal to 2 and c is equal to minus 6 divided by 2a. a is equal to 2. So going a step ahead, minus b plus minus under root 5 square becomes 25 minus 4 2s are 8 and 6 8s are 48 divided by 4. So I have an equation which is minus 5 plus minus under root 25 plus 48 over 4. So solving further, for 25 plus 48 is equal to 73. So plus minus under root 73 divided by 4. So इस इक्वेशन को फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप और। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द सॉल्यूशन इज माइनस 5 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 4। एक इसका आंसर ये आ जाएगा, और सेकंड इसका आंसर आएगा, लेट मी सी, आपके बोर्ड में आ रहे हैं, माइनस 5 माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यस सर। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 4 को दोनों के नीचे ले जाओ, माइनस 5/4 डिवाइड बाय 73। ओके, ये नजर नहीं आ रहा, तो लेट मी erase this. So one solution can be minus 5 plus under root 73
divided by 4, and the other solution could be plus 5 minus, this is minus 5 minus under root 73 divided by 4. So this equation will have two solutions. One we want to solve it out, right? अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? Any question? हाँ सर. All right, let's go ahead. अच्छा जी, जैसे आपने सॉल्व किया इन होल नंबर्स को, होल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ऐसे नंबर जो पूरे पूरे होते हैं, which does not involve point, इस तरह के नंबर को कहते हैं आपका होल नंबर है. Now let's solve a quadratic equation for a floating point number. Floating point या फिर आपके पास ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू 0.2 है, 7.1 है, 7.3 है. सो जो 1 डेसिमल प्लेस के बाद जिनकी एग्जिस्टेंस है उनके ओके जी. अच्छा, ये क्लासमेट्स, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अपने ना माइक ड्यूरिंग द सेशन ना म्यूट रखा करें. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो स्पेस बार प्रेस करें तो आपका माइक मोमेंटरीली अनम्यूट हो जाता है ताकि बाकी क्लास में ना फिर डिस्टर्बेंस ना हो. So let's solve now a quadratic equation for सर 7.3. होल नंबर में पॉइंट्स नहीं आते? नहीं, होल नंबर में पॉइंट्स नहीं आते. 7.3x² minus 31.7 x plus 15.2 is equal to 0. इसको सॉल्व करते हैं. The operating procedure is exactly same if you follow the guidelines, where we have to select a number first, which is A in this case, which is 7.3, B which Excuse is me, sir. minus 31.7. जी बेटा. 15.2 लिखा हुआ है. ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये थोड़ा मुझे बढ़ा करके लिखना पड़ेगा. अब ठीक है जी सर, अब ठीक है. So 7.3x², 31.7 and 15.2. So A is 7.3, B is 31.7 and C is equal to 15.2. So exactly we follow the same process, which is minus B plus minus under root B square minus 4AC divided by 2A. Simply replacing the value, this becomes minus with the value of B, which is minus 31.7 plus minus under root B square is minus 31.7 square minus 4, A is 7.3 and C is 15.2 whole divided by 2A. 2 multiply with 7.3. So solving ahead, this becomes minus, multiply with minus, minus को minus से multiply करते हैं तो आंसर आपके पास आता है plus. So this becomes 31.7 plus minus under root. अब 31.7 का स्क्वायर लेंगे तो we will going to have value equivalent to 900, I guess. And going ahead, so this is so going ahead and solving it out, you will have
30 into 15 minus 30 into 15 divided by 7 2s are 14. So this is multiplying this by 2. So this becomes almost equivalent to 14 15, right? So इसको आप further solve कर लें. So इसके बाद आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे. One is 31.7 plus minus under root 450 plus 450 डिवाइडेड बाय 15. एक आंसर ये आ जाएगा और दूसरा आंसर आपके पास आ जाएगा 31.7 माइनस अंडर रूट 450 डिवाइडेड बाय 15. ये इसका दूसरा आंसर आ जाएगा, राइट? सो आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं. ये अर्थमेटिक ऑपरेशन एग्जैक्टली होल नंबर्स के लिए भी उसी तरह जिस तरह आपके पास पॉइंट्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए या रियल नंबर के लिए इसका आंसर आ जाता है. अच्छा जी, ये जूम मीटिंग करना टाइम 4 मिनट्स रह गया. सो आई विल रिक्रिएट अ सेशन, या मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ. So I have only 10 minutes lecture left. So let me just recreate a session. ठीक है, मैं जूम का ना सेशन दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ, दोबारा सब लोग ज्वाइन कर लें. लॉगिन और पासवर्ड सेम है यही.